After understanding the defects, we have to understand the electrical and magnetic properties of solids. Okay. First of all, electrical properties. Properties of solids. Solids has been divided into uh, three categories based on their uh, conductivity nature. They can be called either conductor, semiconductor, and insulators. Okay. Based on their ability conduct electricity, solids have been categorized into three types. Conductor, semiconductor, and C insulator. ठीक है. Now, जनरली कंडक्टर्स हम उनको बोलते हैं जिनकी कंडक्टिविटी lies between 10 to the power 4 per ohm per meter to 10 to the power 7 per ohm per meter. और जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी रहेगा, ये नंबर जितना ज़्यादा रहेगा, it will be
better conductor. It will be better conductor. Higher the number, it will be better conductor. Then comes semiconductor. Semiconductors का range जो होता है conductivity range that lies between conductivity lies between 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 per ohm per meter. Per ohm is also known as Siemens. So 10 to the power 4 Siemens per meter to 10 to the power 7 Siemens per meter. और यहाँ पर -6 Siemens per meter to 10 to the power 4 Siemens per meter. और इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी जो होती है हमारी that happens to be ranging that is below 10 to the power -6 and it happens to be in between 10 to the power -20 per omega per meter or Siemens per meter to 10 to the power -6 per omega per meter or Siemens per meter. ठीक है और हमारे पास 4 टाइप के सॉलिड्स हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूलर पहला आयनिक एंड आखिरी मेटेलिक ठीक है सॉलिड स्टेट में इनमें से कौन कौन से कंडक्टर रह सकते हैं हाँ तो सॉलिड स्टेट में मेनली मेटेलिक और सॉलिड्स आर कंडक्टर्स ठीक है वेरी फ्यू कोवेलेंट्स आर कंडक्टर्स very few covalent solids are conductors. In fact, there is just one very few just one such example. It's graphite. Covalents are generally non-conductor. Graphite is only exception. ठीक है एंड ऑब्वियसली ग्रेफाइट के साथ साथ फुलेरिन भी ठीक है बॉन्डिंग पैटर्न लगभग सिमिलर रहता है सो दीज आर द कोवेलेंट सॉलिड्स जिनके अंदर में या और भी कोई एग्जांपल्स मिलते हैं हमको जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दे विल बिकम this conductors but in general कोवेलेंट सॉलिड्स क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स उनके ऑक्यूपाइड रहते हैं बॉन्डिंग में यूज रहते हैं और ये सॉलिड्स बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग से ही बनते हैं इसलिए जनरली इनकी कंडक्टिविटी नहीं होती है दे आर नॉट कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट ठीक है मॉलिक्यूलर सॉलिड कभी नहीं होता है नो एक्सेप्शंस फाउंड आयनिक सॉलिड्स भी सॉलिड स्टेट में प्योर सॉलिड स्टेट में दे आर नॉन कंडक्टर यानी NaCl से अगर हम पास करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो NaCl पास नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी ठीक है until unless it becomes converts into liquid state ठीक है so ionic solids non-conductor it is metallic solids which are pure conductors ठीक है
Yes. Solids को what make them conductor, semiconductor or insulator, that has to be understood categorically through a band model explanation. Okay. Now, what is that band model? I mean, we tried to explain it using different concepts, but ultimately it happened that there is something called band theory, uh, which was able to completely explain the all three categories of uh, conductors, or all three categories uh, behaviors, electrical behaviors expressed by these three categories of material. Okay. So, I mean, a single theory which can explain the behavior of these three, I mean, on a same scale, is this electrical band theory or band theory of solids. Okay. So, take this point, the electrical properties of solids can be explained in basis of theory. Okay. So it becomes important for us to know what this theory is. और see, सबसे पहले बैंड होता क्या है? बैंड थियरी में व्हाट इज बैंड? जनरली बैंड क्या होता है? एनी आइडिया? ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग को जनरली बैंड बोलते हैं. ठीक है, जिसका एक रेंज हो स्टार्टिंग फ्रॉम सम लोअर लिमिट टू अ हायर, दैट इज कॉल्ड एज बैंड इन जनरल. ठीक है, यहां पर भी बैंड इज something like that only. ठीक है, here the band is or band is typically defined as the potential energy uh, potential energy
the potential energy gap potential energy ranges are called as band. ठीक है, so potential energy ranges are called as band. नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 0 जूल टू 30 जूल. ठीक है, -20 जूल टू 10 जूल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और छोटे वैल्यूज रहते हैं, वो -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, दीज आर energy gaps, potential energy gaps or potential energy ranges, and these are independent bands. Is that okay? बात समझ में आ रही है? So band क्या होता है? Band होता है just potential energy का range जो होता है उसको हम लोग band बोलते हैं. ठीक है, पॉइंट ये potential energy range और ये band मतलब क्या काम करेगा, कैसे हमारा. और हाँ, ऑब्वियसली दो बैंड के बीच में, जैसे हाँ 0 से 30 हमने लिया है एक बैंड, तो दूसरा बैंड हो सकता है -20 से मे बी -5 तक हो. पॉसिबल है ना. इन दोनों के बीच का गैप को क्या बोलेंगे? ये अगर बैंड 1 है, सॉरी बैंड 2 है और ये बैंड 1 है, तो इन दोनों के गैप को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोल सकते हैं? दो बैंड के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं? दिस नॉर्मली सोच के देखो क्या बोल सकते हो. इट्स कॉल्ड एज बैंड गैप. बैंड गैप. ठीक है, द गैप बिटवीन टू बैंड्स इज नोन एज बैंड गैप. ठीक है, और यहाँ पर दो टाइप के बैंड्स होते हैं. एक होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और दूसरा होता है ये बैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड. एंड वैलेंस बैंड. एक कंडक्शन बैंड होता है और दूसरा बैलेंस बैंड होता है. ठीक है, और इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप. ठीक है, इनकी ओरिजिन क्या है, दैट इज समथिंग व्हिच आई नीड टू एक्सप्लेन फर्स्ट एंड देन इनको इंडिविजुअली डिफाइन करते हैं. तो द बेसिस ऑफ दिस थियरी इज एक हमें पता
है या हमने थोड़ा बहुत समझा हुआ है मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, राइट? मेटल एटम्स रहते हैं, दे लीव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बीच में आकर के स्टोर रहते हैं, राइट? Which was the Yes, sir. origin of metallic bonds. इलेक्ट्रॉन्स आके बाहर रहने या फिर जनरली सॉलिड्स को जब हम देख रहे हैं तो सॉलिड्स में क्रिस्टल क्रिएट होता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है, जिसकी वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी लोअर डाउन होती है, और दैट इज द रीजन फॉर इवोल्यूशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है? When I am talking about solids, obviously they are going to have some potential energy associated, though lower, but some potential energy associated with them. और स्पेशली मेटालिक सॉलिड्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आई मीन सॉरी, इन जनरल सॉलिड्स की बात कर रहे होते हैं एंड स्पेसिफिकली मेटालिक सॉलिड्स, तो मेटालिक सॉलिड्स में वी कैन विजुअलाइज द थिंग्स मोर इजीली। बाकियों में मेटालिक सॉलिड को विजुअलाइज करने के बाद हम उनको भी विजुअलाइज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। सो मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, एज ए इंडिविजुअल एटम देखेंगे तो इसके वैलेंस सेल की कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है? सिमिलरली इस वाले एटम के वैलेंस सेल की पोटेंशियल एनर्जी, इसकी सबकी, ठीक है? और इन सबके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इनके वैलेंस सेल का एनर्जी प्रोफाइल जो है दैट इज इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, ठीक है? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके 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 चारों के साथ, ठीक है? सेकेंड लेवल पर इसके साथ भी। सो और इस टाइप के पोटेंशियल इंटरेक्शन से वैलेंस सेल्स के of the atoms which are involved or molecules which are involved in creation of that crystal system, ठीक है, that solid, there will be a potential energy uh, homogeneous potential energy range that will be created. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इन सबके वैलेंस सेल्स की एनर्जी, whether they are atoms or whether they are molecules रहेंगे तो मॉलिक्यूलर वैलेंस मॉलिक्यूलर सेल रहेगा, एमओटी में वैलेंस मॉलिक्यूलर सेल का कॉन्सेप्ट भी है, जो सबसे बाहर Yes, रहेगा sir. मॉलिक्यूलर सेल दैट इज गोइंग टू बी द वैलेंस मॉलिक्यूलर सेल। तो those cells are going to overlap, interfere, and they are going to create a homogeneous potential energy range, ठीक है? अब ये जो homogeneous potential energy range होता है, homogeneous potential energy range due to interference of balance cell of atoms
as molecules in a solid is termed as band. ठीक है. Yes, sir. एंड सिमिलरली जैसे कोई भी एटम है तो उसके अंदर में सिर्फ वैलेंस सेल तक ही सेल नहीं रहता है, उसके बाहर वाला सेल का एग्जिस्टेंस भी रहता है. ठीक है. क्यों रहता है? क्योंकि अगर रहता ही नहीं है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर कैसे आ पाता? ठीक है. इट वुड हैव डायरेक्टली कम आउट. अगर यहां से निकला तो सीधे नॉकआउट हो जाना चाहिए था उसको. आर यू गेटिंग Yes, दिस sir. पॉइंट? लेकिन ऐसा होता नहीं है. इसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तब ये इन्फिनिटी पर जा पाता है. राइट ना? अदरवाइज कम एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो जस्ट एक सेल ऊपर आकर के एक्साइट होकर के फिर वापस चला जाएगा. That these are the known phenomena. So we can say that though physically they are uh, not part of solid atom, physically these external cells वैलेंस सेल के बाहर वाला सेल फिजिकल ये नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, फिजिकल स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है. एंड व्हाई इट इज नॉट ऑक्यूपाइंग? क्योंकि वहां पर कोई फिजिकल मटेरियल अवेलेबल नहीं है. वैलेंस सेल में यू हैव सम फिजिकल मटेरियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अवेलेबल. ठीक है. पर वहां पर कोई फिजिकल मटेरियल नहीं है बट उसकी एग्जिस्टेंस है. राइट. इट्स नॉट नॉन एग्जिस्टेंट. Is this thing making sense? Yes, sir. It's like aura. And that's not a right way to correlate things, but we can hollow या aura जो होता है, this cell just out of the valence cell is like an aura of the or hollow of the atom. Okay. तो अब वैलेंस सेल के इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस से एक बैंड क्रिएट होता है और दिस is termed as obviously band or specifically I can call it a valence band. ठीक है. वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड में कौन रहेगा? सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर के यहीं पे रहेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स reside, all valence electrons reside in valence band. That is, all the electrons has potential energy in the range specified by valence band. Is that okay? Yes, sir. और इसके जस्ट बाहर वाला जो बैंड है, सॉरी जो सेल है, हर एटम के वो वाले सेल्स भी इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है. हर एटम के ये वैलेंस सेल के जस्ट बाहर वाले सेल जो है ये भी इंटरेक्ट करते हैं. फिजिकली एग्जिस्टेंट नहीं होते हैं बट दे आर एग्जिस्टेंट एंड दे आल्सो इंटरफेयर. ठीक है. एंड दैट इंटरफेरेंस क्रिएट अ
another band that is called as conduction band, or it is also known as ये unoccupied band, ठीक है, या फिर unoccupied conduction band उसको बोलते हैं. Are you getting this point? Yes, sir. Okay. So the next point will be the एक्चुअली वैलेंस सेल वर्ड यूज करना इज रॉन्ग, इसको करेक्ट कर लो. वैलेंस ऑर्बिटल्स, ठीक है. द orbital just outside the valence orbital of the atoms slash molecules also interfere to produce a range of potential energy. This range of potential energy has very low or nil electrons in them. Generally, and thus they are referred unoccupied band unoccupied band or conduction band or even unoccupied conduction band. ठीक है. Yes, sir. अब हमारा थियरी क्या बोलता है
कि it has been observed that this is an observation only, जो भी कंडक्टर्स हैं उनके कंडक्शन बैंड, ठीक है, और वैलेंस बैंड जनरली ओवरलैपिंग है. इस तरीके से है. This is conduction band, sorry, this is valence band and this one is conduction band. दोनों ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या हो जाता है कि this is valence band and this is CD, almost overlapping or very small energy gap. ठीक है, very small energy gap like this. इतना कम कि नॉर्मल सिनारियो में भी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी रहे कि वो इधर से उधर जंप कर पाए. रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी रहती है कि ये यहां से यहां इस गैप को क्रॉस करके इजीली जंप कर पाए. ठीक है, and therefore we have significant number of electrons which are present in conduction band and they start conducting. ठीक है, और एक चीज और, वैलेंस सेल्स जो होंगे या वैलेंस बैंड जो होगा that will be more closely attached to the atom. Is that right? Yes, sir. Whereas unoccupied conduction band जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, by any chance आ जाता है या रहता है, that will be less closely attached to the atom and probably it will be more mobile. ठीक है, that is how it becomes a conducting electron. Is that okay? Yes, sir. ठीक है, so an electron in conduction band is less loosely bound to the individual atoms and it becomes more mobile or free to move. ठीक है, we can just note that small point. The electrons in conduction band are less bound to atoms and are they are more to mobile and hence conduction. और ये हो गया हमारे कंडक्टर्स का. कंडक्टर्स ओके, बैंड गैप डिफाइन किया है.
Next thing is band gap. The energy difference between uh, highest limit of valence band and lowest limit of unoccupied conduction band is known as band gap. ठीक है? For conductors, this band gap is very small or nil, that is, these two bands are overlapping. This makes them good conductor. ठीक है? For Yes, insulators, sir. the gaps are going to be higher. Semiconductors, the gaps are going to be bit higher. For insulators, it's going to be very high. ठीक है? बैंड थ्योरी के बेसिस पर बेसिकली हमारा जो डायग्राम बनता है तीनों टाइप्स के मटेरियल का वो कुछ इस तरह का रहता है. You can have a look at over this to understand it fully. ठीक है? It's like partially filled energy band, overlapping band, empty band, filled band. This is empty band, this is filled band. यहाँ पर gap is very, I mean it's small, not very small. यहाँ पे just touching रहता है या फिर overlapped रहता है. Just touching रहता है या overlapped रहता है. तो this creates a conductor. ठीक है? Conductor. और large gap हो गया forbidden zone. यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप नहीं कर सकता है. Therefore it is insulator. यहाँ पर they can, but in very small quantity. There is energy gap, but this energy gap is neither very small nor very large. So some amount of electrons, some fractional, there are 1000,
maybe 1, 2 or 10 jump according to the value of this gap, and hence these are semiconductors. Is that okay? Yes, sir. So that is how it goes on. There are two materials exclusively, silicon and germanium, which shows intrinsic semiconductor behavior. For them, the band gap is not that great. ठीक है? सॉलिड्स के लिए जनरली बैंड गैप काफी कम रहता है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है. ठीक है, इट्स आइदर ओवरलैपिंग और 0.1 से कम रहता है. मोस्टली इट्स ओवरलैपिंग. फॉर सेमीकंडक्टर्स, आई मीन ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए द गैप इज, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए गैप इज आई थिंक 0.3 and 0.6 या 0.4 and इसका ठीक है, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बैंड गैप, और इसका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. ठीक है. सो एंड जनरली कंडक्टर्स का इट्स बिलो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, 0.1, 0.2, 0 से लेकर के 0.0 क्या मतलब निगेटिव से लेकर के, ओवरलैप हो रहा है तो निगेटिव हो जाएगा ना, निगेटिव से लेकर के 0.2 तक का हो सकता है. उसके बियॉन्ड जाने लगेगा तो इट विल स्टार्ट हैविंग सेमीकंडक्टर बिहेवियर. ठीक है. Yes, sir. ओके. इंसुलेट सॉरी कंडक्टर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बार जो मतलब जो कंडक्टिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी कंडक्टर्स, एंड उसमें कैटेगराइजेशन फिर हमारा बनता नहीं है. जो कंडक्टर है मतलब है, और जो इंसुलेटर है वो इंसुलेटर है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं. बट सेमी कंडक्टर्स के केस में we have a very distinctive, I mean, it provides an space for categorization. ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें इंट्रिंसिक हो जाती हैं और कुछ चीजें एक्सट्रिंसिक हो जाती हैं. इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, आज नहीं हो पाएगा. अभी मुझे क्लोज करना पड़ेगा. मे बी 12-12 बजे. हाँ, आज क्या है तुम्हारा शेड्यूल कॉलेज का? Yes, sir.